Next chapter is job analysis and job evaluation. So what all things we will cover here? Process of job analysis, what is job description and job specification, methods of job analysis, very important, and importance. For job evaluation, we will study about its meaning and definition, importance, process of course, and methods. So we have methods of job analysis also, and for job evaluation also. Okay, so let's start first with job analysis. Yes, okay. So I suppose the screen is clearly visible. Yes, ma'am. Okay. The success of any organization depends on placing the right man on the right job. So matching the one to the job and job to the man is key to the efficient running of the organization. Means job analysis का मतलब क्या होता है? To place the right person, right man for the right job. Suppose अभी मुझे accountant चाहिए, तो अगर मैंने क्लर्क की जो क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अगर मैंने उसको अकाउंटेंट की पोस्ट पे रख दिया, तो वो क्या आप बताओ वो फेयर इनफ होगा कंपनी के लिए? नहीं। तो जो क्लर्क की जॉब के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, उसको मैं अकाउंटेंट की पोस्ट पे नहीं रख सकती। आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? द वन हु इज राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट should be kept on the right post, should be appointed on the right post. So therefore it is known as matching the man to the job and job to the man. मतलब एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना है और राइट जॉब पे राइट पर्सन को मैच करना इसकी efficient running for organization. Okay, however it is possible, this is possible only if we have adequate knowledge and information about the job. तो HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, to have to get adequate knowledge and information about what is the job, what are the duties to be performed, what are the roles to be performed. Okay, and who will be able to perform all these duties, what should be the qualification of a person, so that I understand. See, by looking at person, I will not be able to understand whether he will be able to perform the job or not. But by looking at his qualification and resume, I will be able to understand. So his qualification is very important, and therefore we need to decide his job qualifications. Okay, and therefore we will have to get the adequate knowledge and information about the job. So, for the main purpose of job analysis is to find out, to provide all the details, all the detailed information about job description. Now, whenever I say job description, how did I learn at my times? मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, देखो बहुत कंफ्यूजिंग होता है पता है। जॉब एनालिसिस, तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हम जब भी जानकारी निकालते हैं, एनालिसिस का मतलब ही होता है जब भी जानकारी निकालना। सो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू fetch out that which post is vacant and who is the right person. Analysis में ये होता है, ठीक है? So you need to understand the word analysis first. उसके बाद जॉब एनालिसिस में आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस में आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन D for duties. So this is how you need to, I think this is the simple trick that you can follow to understand, because you need to write down the meanings, no? Now, suppose if I ask in MCQs a statement related to job description, and there are four options: job analysis, job description, job specification, job evaluation. So, which is the correct answer? How would you know that? So, if I ask you the duties and responsibilities are stated in as per dash. So, you need to answer job description, because duties and responsibilities D, description D, duties. So this is how somehow, मतलब आपको कुछ अपनी टेक्निक्स निकाल कर आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है ना? So the purpose of job analysis is to provide a detailed information and description about the job.
डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब मतलब कौन सा जॉब है, ये किस तरीके का जॉब है, इसमें क्या ड्यूटीज है, जॉब के बारे में जानना है, पर्सन के बारे में नहीं. टू डिटरमाइन अबाउट द जॉब एंड अबाउट हाउ टू डू द जॉब, मतलब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब. So job description means about the job. Job specification means about men of the job, about person who is being appointed for the job. स्पेसिफिकेशन मतलब क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए पास्ट में, वो फ्रेशर नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? Yes, ma'am. Yeah. So this is what I wanted to say. जॉब एनालिसिस में दो चीजें होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. वी विल ग्रेजुअली डू इट इन डिटेल. अभी तो मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रही थी. देयरफॉर जॉब एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस. क्या प्रोसेस होता है? बाय विच वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द जॉब. पहले तो जॉब को तो समझ लो. अच्छा, उसके बाद क्या समझना है? ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, कि इसमें कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. अगर ये वाला ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एमबीए क्लियर, मास्टर्स होना चाहिए उसको, कि बीकॉम वाला भी चल जाएगा जॉब पे. ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आ रहा है समझ में? एक्सपीरियंस चाहिए कि फ्रेशर चाहिए? ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. कॉलेज स्टूडेंट चाहिए इंटर्नशिप के लिए चाहिए कि परमानेंट जॉब के लिए चाहिए? ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स. सो आप जॉब के बारे में पहले जानते हो, और जॉब पे किसको बिठाना है, किसको अपॉइंट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी निकालते हो. सो दैट इज जॉब एनालिसिस. तभी तो मैंने बोला जॉब एनालिसिस में दोनों चीजें आती हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स जॉब के बारे में, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब ह्यूमन के बारे में, कि जो जॉब पे अपॉइंट होने वाला है उसके बारे में. सो जॉब एनालिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. कितना इजी है देखो समझना, कितना इजी. जबकि आप खुद बैठ के पढ़ते ना तो बोलते अरे बाप रे, इस चैप्टर में जॉब एनालिसिस भी है, इवैल्यूएशन भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, स्पेसिफिकेशन भी है, क्या क्या समझेंगे हम. सो इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट टिपिकल, इट्स इनफैक्ट वेरी इजी. आया समझ में? आप अपने माइंड में वो पिक्चर बनाओ. जॉब एनालिसिस के नीचे हमने पार्टीशन कर ली दो, एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड जॉब एनालिसिस के राइट हैंड साइड में लिख दिया जॉब स्पेसिफिकेशन. फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब अबाउट द जॉब, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब अबाउट मेन ऑफ द जॉब. कितना इजी है देखो. तो ये तो समझ आ गया ना कि जॉब एनालिसिस में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं. तो वो तो हमारा फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है यहाँ पर. रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द जॉब, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड इट्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन. सो जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाई जॉब इज डन, क्यों करना है, पर्पस क्या है जॉब का करने का. द वे इट हैज टू बी डन मतलब कैसे करना है. ओके, द इक्विपमेंट्स और मशीनरीज टू बी यूज्ड व्हाइल डूइंग द जॉब. क्या प्रोसेस यूज करना है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज करना है कि बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करनी है, मुझे क्या यूज करना है. उस अच्छा, यूज करने के लिए स्किल्स भी तो, सॉफ्टवेयर सबको थोड़ी चलाने आते हैं, मुझे नहीं आते हैं, आपको आते हैं नहीं आते, सीखना पड़ता है. स्किल्स और ट्रेनिंग ऑफ द एजुकेशन नीडेड टू बी परफॉर्म, नीडेड टू परफॉर्म द जॉब. अब उसको सीखने के लिए स्किल्स भी तो चाहिए, मतलब स्किल्स सीखने के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए. अच्छा, उसके लिए वेजेस कितनी पे करेंगे हम, वो भी तो जानकारी निकालनी है. वो एम्प्लॉय है तो सैलरी कितनी पे करेंगे, डायरेक्टर है तो रेम्यूनरेशन कितना पे करेंगे, लेबर है तो वेजेस कितना पे करेंगे, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, कैसे काम, एसी में बैठ के काम करना है, कंडीशन कैसी है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशन सब उसमें आ जाते हैं. कितने घंटे काम करना है, कैसे काम करना है, खड़े रह के काम करना है कि बैठ कर काम करना है. सो इट ऑल, everything is included in job conditions and any other special or unique characteristics of the job. तो जॉब एनालिसिस ये होता है, सारी इंफॉर्मेशन निकालना जॉब के बारे में, एनालाइज एनालाइज करना उसको, डिटरमाइन करना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है. कुछ है ना इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जॉब एनालिसिस में बड़े काम के होते हैं, बड़े बड़े यूजफुल होते हैं. क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, की टर्म्स बोलते हैं उसे. टास्क. टास्क मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर मैंने कोई एक्टिविटी करी. सपोज मेरी कंपनी में एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट की बात करी, मतलब एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पर्पस हो गया मेरा.
सो प्रोजेक्ट के लिए अगर मैंने कोई एक्टिविटी प्लान करी, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, एम्प्लॉयज के लिए सेमिनार रख देना, जैसे जानकारी हो जाए एम्प्लॉयज को, so that they get the detailed information about what has to be done in the project. So this is one activity that I'm going to perform. Suppose a seminar or workshop. So this is suppose a one activity that is going to be performed for a particular project that has to be headed on somebody. तो तो इसको बोलते हैं टास्क, इसको बोलते हैं टास्क। टास्क मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करना एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के ऊपर। अच्छा, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है जब आपको एक सीट दी गई हो टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क, मतलब टास्क अभी 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 मैं समझा क्या होता है, एंड ड्यूटीज मतलब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो जॉब में बताई जाती हैं। देखो लिखा हुआ है परफॉर्म्ड बाय गिवन इंडिविजुअल्स इन अ गिवन फर्म एट अ गिवन टाइम, बताई जाती हैं। मतलब सब कुछ आपको दिया जाता है, गिवन टाइम, फर्म क्या है, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या है करना है इसमें, टास्क क्या है, सब कुछ बताया जाता है। आपको उसको एक्टिवेट करना है, मतलब आपको उसको एक्टिवली कैरी ऑन एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। जॉब, अब जॉब क्या होता है? जॉब मतलब अब मैंने बोला मुझे जॉब मिल गया, तो मेरे साथ साथ तो मेरी पोस्ट पे मेरे साथ साथ तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना। अब आई एम अ प्रोफेसर, ठीक है। अब मेरे साथ साथ तो बहुत सारे, अब मैम है, प्रिया मैम है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। वो सारे कौन हैं? सारे हम एक ही पोजीशन पे हैं, जॉब पे है ना, सॉरी, तो जॉब के बाद आते हैं पोजीशन। ठीक है, तो हम जॉब तो एक ही सिमिलर टाइप ऑफ पोजीशन शेयर कर रहे हैं ना, as a professor for all the students. ठीक है। So in a company, like example, let me give you an example, executive accountant. So there are so many accountants in that particular position, so many. तो जॉब तो बहुत लोगों के साथ शेयर किया जाता है। In the same organization, there are group of number of people sharing similar positions. There may be one or more person in the same job. मतलब उस एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है बड़ा कंपनी अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट से काम नहीं चलता। मेरे पास लाखों अकाउंटेंट है। बहुत बड़ी कंपनी है तो, छोटी कंपनी है तो 4-5 अकाउंटेंट, 20 अकाउंटेंट, 50 अकाउंटेंट से भी काम चल जाता है। ओके, सो जॉब ऑफ अकाउंटेंट है ना, समझ में आया? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन इज ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, आप पोजीशन के ऊपर आता है, मतलब बाद में आता है जॉब, जॉब के बाद आता है जब ग्रुप ऑफ जॉब्स बन जाती है ना, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर जॉब्स है अकाउंटेंट की, अलग अलग कंपनीज में, एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पे बहुत सारे लोग, मतलब जॉब। ऑक्यूपेशन मींस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सिमिलर जॉब्स। बहुत सारी कंपनीज में आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट की पोस्ट का, तो उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। सो ऑक्यूपेशन इज अ वाइडर टर्म। उससे छोटा टर्म जॉब, उससे छोटा टर्म पोजीशन, उससे छोटा टर्म टास्क। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। हाँ, ठीक है ना। तो ये हमने एक जॉब्स एनालिसिस के बारे में पढ़ा। ये पूरा जो भी था ना, ये जॉब एनालिसिस का इंट्रोडक्शन था। एक छोटा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर। वैसे तो 3 है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जॉब एनालिसिस हैज टू बी डिफाइंड एज, ये वाला अच्छा है। वेंडल फ्रेंच का भी अच्छा ही है, चाहिए तो देख लो। द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ जॉब कंटेंट, मतलब आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट मतलब जानकारी निकालनी, एनालिसिस का मतलब ही यही होता है, जानकारी निकालना। टू डिटरमाइन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब, टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द जॉब कंटेंट, मतलब जॉब में क्या क्या है, फिजिकल सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हैं, मतलब कैसे जॉब करना है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए जिसको ये जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कितना इजी डेफिनेशन है देखो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मीन्स, प्रोसेस का मतलब कोई बताएगा मुझे? प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर टाइप। प्रोसीजर मतलब स्टेप्स, स्टेप्स टू कंडक्ट जॉब एनालिसिस, उसको कहते हैं प्रोसेस। अब इन अ फॉलोइंग मैनर,
इट इज टू बी डन इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब सीक्वेंस में जाना होता है आपको। चलो जाते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहला होता है डिटरमाइन द टाइम फॉर जॉब एनालिसिस। कब ट्रूली मुझे नीड है कंपनी में कि इस टाइम पे मुझे ये पोस्ट पे ये बंदा चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे गवर्नमेंट की कोई जॉब है और है ना, और 5 इयर्स का आपका होल्डिंग पीरियड है। सपोज मिनिस्टर है, एक फाइनेंस मिनिस्टर, उसका 5 इयर्स का होल्डिंग पीरियड है। ऑफिस होल्डिंग पीरियड क्या है? 5 इयर्स। मतलब 5 इयर्स में उसको निकलना ही है, 5 इयर्स में वो रिटायर ही होगा। या तो रिटायर होगा या तो टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन मीन 5 इयर्स हो गए ना, तो सपोज 5 इयर्स हो गए, अब तो किसी और को रखना पड़ेगा ना। तो 5 इयर्स के बाद तो बाद मुझे नीड पड़ेगी ना जॉब एनालिसिस की। सो डिटरमाइन द टाइम, कब मुझे नीड पड़ेगी। 3 इयर्स, 5 इयर्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, कब नीड पड़ेगी मुझे जॉब के बारे में जानकारी निकालनी है और राइट रिक्रूटमेंट करना है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब को प्रोसीजर में लाना है। सो व्हाट इज द टाइम फॉर दैट? डिटरमाइनिंग द टाइम। कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड डेटा, सारी बैकग्राउंड डेटा निकालनी है कि कैसे मुझे जॉब करना है, कौन फिट बैठेगा जॉब करने के लिए। अच्छा, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है जॉब की, क्लास ऑफ जॉब क्या है, मतलब कैसा जॉब है ये। अकाउंटेंट का जॉब है, क्लास मतलब कैटेगरी, अकाउंटेंट का जॉब है, क्लर्क का जॉब है, कैसा जॉब है, मैनेजर की पोस्ट का जॉब है, मैनेज करना है पूरी कंपनी को, सुपरवाइजर की जॉब जॉब की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्लास क्या है जॉब का, कैटेगरी क्या है, और उसके बारे में सारी जानकारी निकालना, डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट थर्ड स्टेप, सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव फॉर जॉब, सिलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स फॉर एनालिसिस। मतलब बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो मैं इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लेती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो ये जॉब परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसके उसके लिए मैं एक आइडिया निकालने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रख लेती हूँ कि ऐसे वाले पर्सन है ना, ऐसी वाली जॉब कर सकते हैं। तो मेरे सामने सैंपल आ गया, अब मैं ढूंढना शुरू करूंगी, डेटा निकालना शुरू करूंगी। फोर्थ स्टेप, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। अब मैंने डेटा निकालनी है, क्या क्या डेटा निकालनी है, इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब, सामने वाले पर्सन की क्वालिफिकेशन ये है कि ये नहीं है, कि इतनी है उसकी इतनी है, इसको रिजेक्ट करो, एंड ऑल दैट। बिहेवियर ऑफ जॉब, जॉब की डेटा कलेक्ट करने के लिए ना, जब आप जॉब की डेटा कलेक्ट करते हो ना, तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि पर्सन का बिहेवियर, किसी भी जॉब जॉब में एक पर्सन को जब अपॉइंट करना है तो व्हाट शुड बी द बिहेवियर, मतलब वो कैसे तरीके का जॉब परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मार्केटिंग का जॉब है, व्हाट इज द बिहेवियर, मतलब उसका बिहेवियर, मतलब वो आउटर बिहेवियर की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम सेइंग कि जो स्किल्स, कैसा स्किल रिक्वायरमेंट है जॉब परफॉर्म करने के लिए। जैसे मार्केटिंग है तो सेल्स एजेंट है तो मार्केटिंग का जॉब करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाना है तो कोई कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट ही वो जॉब को चला सकता है, वो जॉब परफॉर्म कर सकता है। सो डेटा में बी कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज हु एक्चुअली परफॉर्म द जॉब। आप किसी से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो जो जॉब कर रहे हैं एक्चुअली में, और फ्रॉम द सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर से भी ये जॉब का डेटा कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस ले सकते हैं। समटाइम्स आउटसाइड एक्सपर्ट्स may be appointed who observe the employees at work and make the notes of their observations। मतलब बाहर के कुछ एक्सपर्ट्स को आपने बुला लिया और दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर जस्ट लुकिंग एट द एम्प्लॉयज, हाउ डू दे वर्क एंड हाउ डू दे बिहेव। क्या उनका नेचर एग्रेसिव तो नहीं हो जाता है जब जब कुछ उनको नहीं आता है? क्या वो टीम वर्क में काम कर पा रहे हैं? क्या वो जो उनको ड्यूटीज दी गई है सॉफ्टवेयर चलाने के लिए दिया हुआ है वो प्रॉपर चला रहे हैं, नहीं चला रहे? तो ये चेक करना बिहेवियर उनका। डेवलपिंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट स्टेप। अब चेक कर लिया, डेटा निकाल ली, अब डेवलप अ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब बताना है एग्जैक्टली जॉब डिस्क्रिप्ट। देखो मैंने आपको बोला ना, जॉब एनालिसिस में दोनों चीजें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, दोनों पॉइंट्स देखो, फिफ्थ एंड सिक्स आपको पता लग जाएगा। अब वो स्टेप है डेटा कलेक्शन के बाद जो मैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करती हूँ, जो एक्चुअली परफॉर्म करने वाला है, जो जो पर्सन एक्चुअली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करता है ना, वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मुझे यहाँ पे डिटेल में डेवलप करना पड़ता है, बताना पड़ता है कौन सी ड्यूटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्या टास्क है आपका,
एक्चुअली आपका काम क्या है, जिसके लिए आपको जॉब पे रखा गया ना, वो आपका काम है क्या, वो यहाँ पर डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। याद रखो, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन को ना जब तक आप जॉब स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं करते हो ना, तब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब जो अब मैंने अभी अभी रिसेंटली मैंने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेवलप किया, बनाया, सोचा कि सोचा कि कैसी ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए सामने वाले पर्सन की वाइल परफॉर्मिंग द जॉब। तो वो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा ना कि उसके लिए कौन सा पर्सन सूटेबल है, कौन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अबाउट द मेन, एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका एक्सपीरियंस, everything will be taken into consideration while preparing a job specification. Personal attributes that the employee needs to have for effective job performance, वही मैंने भी वही बताया आपको। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी नोट डाउन करने पड़ते हैं उसके लिए, जैसे जेंडर, एज, फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जेंडर, एज, ये सब भी तो मायने रखते हैं। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं, जैसे आप अभी देखो, बहुत सारे गर्ल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग का जॉब प्रेफर नहीं करते, बिकॉज दे हैव टू वर्क एट होम ऑल्सो। सो दे डू प्रेफर वर्क टू वर्क इन कन्फाइंड ऑफिस। ठीक है, बंद जो ऑफिस होती है, एक जगह बैठकर काम करना है, सो दे प्रेफर मोर ऑफ द जॉब्स लाइक कन्फाइंड वाले जॉब्स। ठीक है, मार्केटिंग वाला, बाहर घूमने वाला जॉब उनको नहीं जमता। सो सच लाइक, वो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी तो खैर सिनेरियो चेंज हो गया, जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल कि ऐसे बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिसमें जेंडर और एज बहुत मायने रखता है। एज भी ऑफ कोर्स, क्योंकि अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, एक मैंने ना बहुत महंगा सॉफ्टवेयर खरीदा, उसको चलाने के लिए मुझे एक पर्सन चाहिए। अब वो सीनियर सिटीजन होगा तो उसको कंप्यूटर ही नहीं चलाने आता है, मतलब कहाँ से वो सॉफ्टवेयर चला पाएगा। देखो, जनरली तो यही देखा जाता है ना, यंगस्टर्स में ज़्यादा नॉलेज होता है टेक्नोलॉजी का। जनरली, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सीनियर सिटीजन्स में नॉलेज नहीं होता है, वो जॉब नहीं कर सकते, करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी बैंक्स में जाओ तो आपको बहुत सीनियर सिटीजन्स ही मिलेंगे, तो उनको ना ट्रेन किया जाता है, उनके ऊपर खर्चा किया जाता है बहुत, कि आपको ये सॉफ्टवेयर देखना ही पड़ेगा। मोबाइल बैंकिंग अभी ओपन हुआ, जैसे जब ये सिस्टम आया था मोबाइल बैंकिंग का, तो ये तो सॉफ्टवेयर है ना जो कोई चला रहा है, और तब हमको ये एप्लीकेशन मिल रही है, मोबाइल में ऐप मिल रहा है मोबाइल बैंकिंग के लिए। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना जो चलाया जा रहा है, तो उसको उस सॉफ्टवेयर की जानकारी लोगों को देना। सो यूजुअली क्या, देखो 90% तो यही देखा गया है ना कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग जनरेशन है वो प्रेफर करती है। ठीक है, तो मैं उस जनरल टर्म्स में बात कर रही हूँ। एनीवेज, every term, every definition, every aspect has exceptions। तो मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जनरली आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ कि एज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फैमिली बैकग्राउंड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली जेंडर इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, सो आई थिंक डन फॉर द डे। और करना है फिर हम मेथड्स अभी शुरू करेंगे ना, पर ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज 11, it's already 11:45 on the clock, and I have like another lecture also. So I think that's enough for the day। करना है मेथड्स, करेंगे भी तो पर पूरा नहीं हो पाएगा। We have 5 methods। ठीक है, anyways we'll do it in the next lecture। So far if you have any doubts up to here, so you can clear it out। कुछ doubts हैं कि हम wind up कर सकते हैं? Any doubts? Yes, any doubts? Come on quickly। नहीं मैम। नहीं है ना? ठीक है, आप फिर भी रिवाइज करिए उसको। ठीक है, आप जब जॉब आई मीन जब आप रेफर करेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में और डिटेल में, तो मे बी कुछ डाउट आ जाए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ओके मैम।
Okay, ठीक है. So we will wind up now, and we will continue in the next lecture tomorrow. And I think by tomorrow, if we have 2 lectures together, तो मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा. ठीक है, सेकंड चैप्टर. So in your internals, first and second chapter is to be considered. ठीक है, for your internals. So most probably कल हमारे ये second chapter भी हो जाएगा. Is that okay? Shall I wind up for the day? Yes, ma'am. Okay, okay. Take care, everybody. Bye. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Yeah, Thank you. bye.